محترم بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس مالک کائنات کے لیے ہے، اس خالق کائنات کے لیے ہے، اس رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں پھر سے اپنے مقدس گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اپنے پاکیزہ گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، میں پچھلے 3 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے سیرت کے عنوان سے گفتگو کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے سیرت کے مختلف پہلو بیان کیے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان کیے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ مبارکہ کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو فرمائی ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، دین اسلام میں جس سے سب سے زیادہ بہار آئی اسے قرآن پاک کہتے ہیں، اور قرآن پاک سب سے مقدس کتاب ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، ایک مہینہ آگے آنے والا ہے جسے رمضان المبارک کہتے ہیں، اور رمضان المبارک مہینے کی بھی برکت اور اس کی جو بھی چیز ہوتی ہے اسی قرآن مقدس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ قرآن مقدس ہمیں جس ذات کی وجہ سے ملا ہے، جس کی بدولت سے ہمیں ایمان ملا ہے، یہ قرآن ملا ہے، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، جس کی بدولت ہمیں قرآن ملا ہے، جس کی بدولت ہمیں یہ اسلام ملا ہے، جس کی بدولت ہمیں ایمان ملا ہے، کیوں نہ آج کی اس محفل میں، آج کی اس مجلس میں، آج کی جمعۃ المبارک کے دن اس ذات کا تذکرہ کیا جائے، ان کے معجزات کا تذکرہ کیا جائے، ان کے حالات طیبہ کا تذکرہ کیا جائے، ان کی زندگی کا تذکرہ کیا جائے، ان کی سیرت کے مختلف پہلو بیان کیے جائے، ان کے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے، ان کے یاروں کا تذکرہ کیا جائے جو ان کے تعلیم یافتہ ہے، جو ان کے ہدایت پر چلنے والے ہیں، جنہیں قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہے، کیوں نہ ان کا تذکرہ کیا جائے۔ محترم بزرگوں دوستو، سیرت کے مختلف پہلو ہے جو میں پیچھے بھی گزر چکا ہے کہ سیرت کے اہل سیرت نے لکھا ہے کہ سیرت کے مختلف پہلو ہے، بہت سے پہلو ہے۔ اہل سیرت نے محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف پہلو لکھے ہیں۔ سیرت لکھنے والے سیرت لکھتے گئے، سیرت بیان کرنے والے سیرت بیان کرتے گئے، صدیاں گزر گئی، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے سیرت کا حق ادا کیا ہے۔ 1400 سال گزر گئے ہیں، سیرت نے مختلف پہلو لکھے ہیں، کسی نے ولادت سے لے کر نزول وحی تک لکھ ڈالا، لیکن دعویٰ یہ نہیں کیا کہ میں نے حق ادا کیا۔ تو کسی نے نزول وحی سے لے کر آپ کی ہجرت تک اور ہجرت سے لے کر آپ کی وفات تک سیرت لکھ ڈالی، لیکن یہ دعویٰ کہیں نہیں کیا کہ میں نے حق ادا کیا۔ صدیاں گزر گئی، دفتر کے دفتر ختم ہو گئے، عمریں گزر گئی، سب زندگیاں ختم ہو گئی، لیکن ہم سیرت کے ابتدائی درجے تک ہی پہنچ پائے، بلکہ اس سے بھی کم پہنچ پائے۔ سیرت کے مختلف عنوان لکھے گئے، ایک الگ الگ مختلف عنوان لکھے گئے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی آغاز، میں اپنی ابتدا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 2 نام مبارک سے کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو بھی معلوم ہے، جو مجھے بھی معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نام مبارک تھے، ایک تھا احمد، ایک تھا محمد۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مشہور نام ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میں انہی سے آغاز کروں، انہی کے بارے میں گفتگو کروں۔ بزرگوں دوستو، محمد کے 2 نام ہیں، ایک محمد، ایک احمد۔ محمد بھی آپ کا نام ہے، احمد بھی آپ کا نام ہے۔ احمد آپ کا نام بہت پہلے سے ہے میرے بزرگوں دوستو، اور اس زمن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کروں، میں آپ کو بتاؤں کہ تورات میں آپ کا تذکرہ کیا ملتا ہے، آپ کی ذکر کے بارے میں کیا ملتا ہے، میں بتاؤں گا انجیل میں آپ کا تذکرہ کس طرح ہوا، آپ کی صفات کس طرح بیان ہوئی ہے، میں زبور میں بتاؤں گا، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے اگر میں بات مکمل نہ کر بھی پاؤں، لیکن جتنا بھی مکمل کر سکوں میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات غور سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ میں کھولنے لگا ہوں محمد کا نام۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کب سے ہو رہا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی ولادت پہ خوشی منائیں گے تو یہ تذکرہ ہے، نہیں، ولادت سے پہلے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ولادت سے پہلے آپ کا تذکرہ کہاں ہو رہا تھا؟ آپ کا تذکرہ آسمانوں پہ ہو رہا تھا۔ قرآن خود بیان کرتا ہے کہاں آپ کا تذکرہ ہو رہا ہے، ابھی نبی دنیا کے اندر مبعوث نہیں ہوئے ہیں، دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے ہیں،
बल्कि आपका तज़किरा आसमानों में हो रहा है, आपका नाम आसमानों में लिया जा रहा है। आसमानों में आपका नाम क्या था? आसमानों में आपका नाम अहमद था। कुरान खुद बयान फरमाता है, मैं नहीं कहता हूँ, कुरान फरमाता है। हजरत ईसा की बशारत में फरमाता है, इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इस्राईल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूली याती मिन बअद इस्मुहु अहमद। कुरान ने खुद कहा है, अभी आप दुनिया में नहीं आए हैं, आपका तज़किरा हो रहा है, आपकी सिफात बयान हो रही है, आपका नाम आसमानों में लिया जा रहा है। आसमानों में आपका नाम क्या था? अहमद था। हज़रत ईसा के बारे में बशारत देते हैं, कहते हैं कि मेरे बाद एक नबी आने वाला है, वो आखिरी नबी आने वाला है, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम अहमद होगा। वो आने वाला है, अभी आए नहीं, आपका तज़किरा। यानी कि हम जो कह रहे कि विलादत, जब आपका मिलाद विलादत हुई है, आपका तज़किरा तब करेंगे, नहीं, उससे पहले ही आपका तज़किरा हो रहा है आसमानों में, अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। कह रहे कि मेरे बाद नबी आएगा, उसका नाम होगा अहमद होगा, ये कुरान कहता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, जब आप रोए जमीन के अंदर तशरीफ लाते हैं, आपका नाम क्या रखा जाता है? मोहम्मद। आपका नाम मोहम्मद रखा जाता है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि कयामत में आपको मैं मकाम महमूद अता करूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये 3 जुमले याद रखने चाहिए, एक है अहमद, एक है मोहम्मद, एक है महमूद। क्योंकि आपको कयामत के अंदर क्या दिया जाएगा, क्या अता किया जाएगा? मकाम महमूद। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, एक नाम क्या है? अहमद। एक नाम क्या है? अहमद। अहमद के माने क्या है? अहमद के माने है सबसे ज्यादा हम्द करने वाला, सबसे ज्यादा हम्द बयान करने वाला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम्द बयान की, अल्लाह ताला की, अंबिया अलैहिस्सलाम ने हम्द बयान की है, अल्लाह ताला के नेक बंदों ने हम्द बयान की है और कयामत तक करते रहेंगे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महराज की रात कहाँ तशरीफ ले गए? आसमानों पे तशरीफ ले गए। क्या देखते हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा? देखते हैं, कहते फरमाते हैं, आसमान में कोई ऐसी जगह नहीं जहां फरिश्ते रुकू में ना हो, जहां फरिश्ते सजदे में ना हो, जहां फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह बयान न करते हो, जहां फरिश्ते अल्लाह की हम्दो सना बयान न करते हो, अल्लाह की हम्दो सना बयान न करते हो, तारीफ न बयान करते हो, अल्लाह की तकदीस बयान न करते हो। हर जगह बड़ी पड़ी है, सब ने की है, फरिश्तों ने की है, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है, अल्लाह ताला के नेक बंदू ने की है, फरिश्तों ने भी की है, बुजुर्गाने दीन ने भी की है, उलमाए उम्मत ने की है, नेक बंदू ने भी की है और कयामत तक करते रहेंगे। लेकिन अल्लाह ताला के हम्दो सना कभी खत्म नहीं होगी। कुरान में खुद अल्लाह फरमाते हैं, सूरह लुक़मान के अंदर फरमाते हैं, वलौ अन्नमा फिल अर्द मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमद्दुहु मिन बअदिही सबअतु अबहुरिन मा नफिदत कलिमातुल्लाह। अल्लाह खुद फरमाते हैं सूरह लुक़मान के अंदर, कहते हैं पूरे जमीन के दरख्त जो है अगर इनको कलम बनाए जाए, फिर इनके और जो समंदर दुनिया के अंदर है इनको लाया जाए, स्याही बनाई जाए और फिर इसके अंदर 7 समंदर फिर शामिल कर दिए जाए, फिर अल्लाह की हम्दो वो बातें लिखी जाए जिनसे अल्लाह ताला के कमालात बयान किए जाए, आपकी किबरियाई बयान की जाए, आपकी हम्दो सना बयान की जाए, कलम घिस जाएंगे, ये दरिया खत्म हो जाएगी, सियाह खत्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला की तारीफ कभी खत्म नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं सूरह लुक़मान के अंदर। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, सबने अल्लाह की हम्दो सना बयान की है, लेकिन सबसे ज्यादा बयान की है हमारे और आपके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा हम्दो सना बयान की है। अब इश्काल करने वाले इश्काल करते हैं, कोई इस्लाम पे उंगली उठाता है, कोई मोहम्मद की बात पे इश्काल करता है, कोई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे उंगली उठाता है, इश्काल करता है, एतराज करता है। कैसे हो सकता है? आपकी नबी की उम्र तो सिर्फ 63 साल थी, 63 साल थी। बाकी अंबिया की उम्रें भी तो देखो, हजरत नूह को देखो, 950 साल उसने अल्लाह की तबलीग की है। ये जो नूह का तूफान आया है उसके बाद वही वो जिंदा रहे। एक रिवायत में 40 साल तक जिंदा रहे उसके बाद जब तूफान नूह आया, एक रिवायत में 60 साल तक जिंदा रहे हैं और एक रिवायत में है सबसे ज्यादा जो जिंदा रहे 150 साल।
हजरत नूह तूफान के बाद 950 साल दावत देने के बाद उसके बाद 150 साल जिंदा रहे हैं। आपकी उम्र, नबी की उम्र कितनी? 63 साल। और हजरत नूह की उम्र देखो, बाकी पैगंबरों की उम्रें तो देखो, उनकी उम्रें तो हजारों साल थी। आप कैसे मान ले कि हम कैसे मान ले? आप कहते हो नबी ने सबसे ज्यादा हम्दो सना अल्लाह की बयान की है, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? बाकी अंबिया की उम्रें ज्यादा है, नबी की उम्र कम है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, फिर कहते हैं इश्काल करने वाले, फरिश्तों को देखो, फरिश्तों अव्वल से आखिर तक कयामत तक जिंदा रहेंगे, वो मरेंगे नहीं। वो तो अल्लाह की हम्दो सना उसकी तकदीस बयान करते हैं, वो तो उनसे भी ज्यादा करेंगे। हम कैसे मान ले? ये कैसे हो सकता है कि नबी ने सबसे ज्यादा सना बयान की, आपकी हम्दो तकदीस बयान की है? हम मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके इश्काल, इनके जवाब में मैं 1-2 बातें कहता हूँ जिससे ये इश्काल साफ हो जाता है। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, बाज मर्तबा ऐसा होता है, बात छोटी होती है लेकिन उसके माने, उसकी तशरीह के लिए दफ्तर भर जाएंगे, दफ्तर के दफ्तर भर जाएंगे। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, एक मिसाल देता हूँ। लंदन का नाम सबने सुना है। लंदन में एक कोहिनूर है, मशहूर हीरा है। कोहिनूर ऐसा हीरा है जो जिस्म के लिहाज से, चीज के लिहाज से बहुत छोटा है। एक हीरा जो छोटा है जिस्म के लिहाज से, लेकिन कीमत के लिहाज से बहुत सबसे ज्यादा कीमती है। वरना वो कोहिनूर है क्या? वो हीरा तो एक पत्थर है, दुनिया के अंदर उससे बड़े पत्थर है, लेकिन बड़े बड़े पत्थर है जिस्म के लिहाज से, उनकी उतनी कीमत नहीं है जितनी इस छोटे से हीरे की है। इसलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटे छोटे जुमलों में अल्लाह की ऐसे हम्दो सना बयान की है कि दफ्तर के दफ्तर भर जाएंगे। खुद फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या फरमाते हैं? बयान फरमाते हैं, शख्स ने अल्लाह की हम्दो सना इतने छोटे जुमलों में की है, उसने सिर्फ ये कहा, ए अल्लाह मैं तेरी हम्दो सना, मैं तेरी तारीफ बयान करता हूँ, ऐसे तारीफ बयान करता हूँ जैसी तेरी शान है, जैसे तेरी जाहो जलाल है, जैसे तेरी अजमत है। उस एतबार से मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ, आपकी सनाह बयान करता हूँ। फरिश्ते घबराते हैं, फरिश्ते कहते हैं अल्लाह इसका क्या सवाब लिखेगा, इसके सवाब हम क्या लिखेंगे? इसने ऐसे अल्फाज कहे हैं, इनके नेकियों के दफ्तर भर जाएंगे। अल्लाह इसका सवाब क्या लिखेंगे? इसने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, दफ्तर के दफ्तर भर जाएंगे, क्या नेकी लिखे अल्लाह? अल्लाह कहता है, ए फरिश्तों तुम नेकियां मत लिखो, तुम थक जाओगे। इसको मैं कल अपनी मुलाकात पे जब ये मुलाकात के लिए आएगा, इससे मैं खुद इसका अजर अदा करूंगा। तो पता चला कि छोटे जुमले हो लेकिन उनके माने बड़ा हुआ करते हैं। फरिश्ते तो दूर की बात, दुनिया में ऐसे जब उस बंदे ने इतने अल्फाज से इतनी बड़ी नेकियां कमा ली, इतने हम्दो सना बयान की है, फिर सोचो नबी की अजमत, उन्होंने किस अंदाज से तारीफ बयान की होगी अल्लाह की, उन्होंने किस अंदाज से अल्लाह की हम्दो सना तक़दीस और तौसीफ बयान की होगी। कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे बुजुर्गों दोस्तों, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता।